Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lesson regularly. This is your English text class. Students, in the previous class, we started a new chapter, social etiquettes and manners. In the previous class, I discussed with you the difference between etiquettes and manners, and then we have done some pre-reading exercise. I asked you some question, I integrate the topic with the Islam, and I told you the ahadith about the etiquettes and manners. Okay, let's start reading. Today we will start reading of unit number 2, social etiquettes and manners. Open your book and take your highlighter to highlight the new words, and keep your dictionary with you. The name of the chapter I told you before, social etiquettes and manners, and I told you also that this chapter is in the form of letters, in the form of some 5 informal letters written by the students of secondary class to a big brother big brother whom the student will tell their problems, and he will tell the solution of their problems. Okay, and they will write the letter in a magazine called Students Magazine. ये एक मैगजीन में लेटर लिखेंगे जहाँ पर उनको एक जो बिग ब्रदर हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स के जो है वो सॉल्यूशंस देंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेटर. आई एम टेलिंग यू अगेन इन उर्दू दैट कि ये लेटर्स की फॉर्म में है. ये चैप्टर 5 स्टूडेंट्स से लिखा है. दे आर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं. ये स्टूडेंट मैगजीन में लिख रहे हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैगजीन? स्टूडेंट मैगजीन है. एंड दे आर राइटिंग अ लेटर टू, किसको लिख रहे हैं? बिग ब्रदर को लिख रहे हैं. वाई, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दे वॉन्ट टू आस्क द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड दे वॉन्ट देयर सोल्यूशन. ओके, उसके जो है वो हल चाहते हैं. लेट्स बिगिन. Let's start reading. Reading comprehension, problems and solution. Students Magazine asks Big Brother the solution to all your problems. For the first letter I am reading. Dear Big Brother, I am the only grandson of my grandparents. Though they love me a lot, but one thing upsets me. Whenever they come to visit us, they always tell my parents that I am an ill-mannered child. I never talk to them in a harsh way or misbehave, so I don't know why they say this. Please guide me how to treat them so that they feel happy. Unhappy Zen, grade 6. And now, dear Zen, I am sure you respect your grandparents, but older people always expect something more. Here are some valuable tips. If you follow these, you will probably make them very happy. Give them a warm smile, a warm welcome with a smile when you greet them. Give them a helping hand, especially when they are carrying their things. Spend some time with them, listen to them what they say. All people get easily irritated, but be kind and polite to them. Now come to the second letter. Dear Big Brother, I am short in height and I travel in a public bus daily. My problem is that though I always pay my fare, while I am mostly asked to give up my seat for other people. Since I pay my fare, it is my right to get a proper seat. Moreover, whenever the conductor asks me to stand up, my friends make fun of me and I get annoyed. Please tell me what to do. Disturbed Essen, grade 9. Dear Essen, it is good that you are honest boy and you pay your fare. I think you are very lucky to be asked to give up your seat for an adult, especially for an old or handicapped person or a person carrying something heavy. This gives you a chance to serve others
Also, it is good manners to offer your seed to those who need it more than you. Secondly, do not stop doing good deeds because your friends mock you. In fact, feel honored that God has selected you to give comfort to other human beings. Now I explain you. The first letter is written by Zain, who is the student of grade 6, and he is unhappy. Why is he is unhappy? क्यों unhappy है? मैं आपको बताती हूँ. I am the only grandson of my grandparents. Now he is writing a letter. Who is writing a letter? Zain, who is the student of class 6. अब जो है वो कौन है? जैन. जैन जो है वो ग्रैंडसन है, यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के. दो अगरचे दे लव मी, वो लिख रहे हैं कि वो जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं. बट वन थिंग अपसेट्स मी, लेकिन एक चीज़ जो है वो उनको अपसेट करती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपसेट? आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड. What is the meaning of upset? Upset means होता है make unhappy, यानी उदास कर देना. लेकिन उनको एक चीज़ उदास कर देती है. क्या चीज़ है? Whenever they come to visit us, वो जब कभी भी वो हमें मिलने आते हैं. विज़िट का मतलब होता है मिलना, किसी जगह को विज़िट करना, यानी उस जगह का दौरा करना या वहाँ आना. दिस इज़ कॉल्ड विज़िट. तो दे ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स, और वो हमेशा कंप्लेन करते हैं मेरे पेरेंट्स को कि आई एम एन इल मैनर्ड चाइल्ड. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इल मैनर्ड? द मीनिंग ऑफ इल मैनर्ड मीन्स द पर्सन हु डू नॉट बिहेव वेल, जो बदतमीज़ी से बिहेव करता है, जो बदतमीज़ी करता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड द इल मैनर्ड. तो वो कहते, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी जैन के, वो उसको इल मैनर्ड चाइल्ड कंसिडर करते हैं. आई नेवर टॉक टू दैम इन अ हार्श वे. अब वो अपना रीज़न बता रहे हैं. हालांकि मैं उनसे कभी भी हार्श का मतलब होता है कि से समथिंग इन अ रफ मैनर, यानी अगर किसी से बदतमीज़ी से बात करना, मिसबिहेव करना, रूडली बात करना, तो मैंने तो कभी उनसे हार्श वे में और उनसे कभी भी मिसबिहेव नहीं किया, यानी उनसे कभी भी उनसे बैड मैनर से नहीं बिहेव किया है. सो आई डोंट नो व्हाई दे से दिस. तो मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, कैसा क्यों कहते हैं, यानी उनको इल मैनर्ड चाइल्ड क्यों कहते हैं. प्लीज़ गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए. हाउ टू ट्रीट दैम, मैं उनको कैसे ट्रीट करूँ, यानी उनके साथ कैसा बिहेव करूँ. ट्रीट मीन्स यहाँ पर है बिहेव करना, बर्ताव करना. सो दैट दे फील हैप्पी, कि वो मुझसे खुश हो जाएं, ताकि वो मुझे अच्छा समझने लगे, मुझे इल मैनर्ड चाइल्ड कंसिडर ना करें. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, जैन इज़ वेरी अनहैप्पी. उनका उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया है, जो उसकी फीलिंग्स बताई है जैन की, कि वो कैसे फील कर रहा है, ही इज़ फीलिंग अनहैप्पी. Now the big brother is giving the solution to Zain. उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं? Let's start. I am sure you respect your grandparents. वो कहते हैं I am sure. Sure means certain. मुझे यकीन है. You respect your grandparents. आप अपने grandparents की respect करते हैं. But older people always expect something more. लेकिन जो एजेड पीपल होते हैं, ओल्डर मीन्स एजेड, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, एल्डरली होते हैं, वो हमेशा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करते हैं, होप करते हैं समथिंग मोर, कि वो हमें और हम ज़्यादा उनसे अच्छा बिहेव करें. हेयर आर सम वैल्यूएबल टिप्स. वैल्यूएबल मीन्स प्रेशियस, यानी कुछ कीमती टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ. इफ़ यू फॉलो दीज, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, इफ़ यू एक्ट अपॉन दीज, इफ़ यू फॉलो दीज, अगर आप उसको उस पर अमल करेंगे, दीज यू विल प्रोबेबली मीन्स होता है शायद वो आपसे जो है वो यकीनन आपसे वो जो है वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे. सो व्हाट आर द टिप्स गिवन बाय बिग ब्रदर? क्या क्या टिप्स दिए हैं? व्हाट इज़ द फर्स्ट टिप गिवन बाय बिग ब्रदर टू जैन to make his grandparents happy? Give them a warm welcome with a smile when you greet them. यानी उन्होंने कहा कि आप जो है वो उनको अच्छी तरीके से वेलकम कीजिए, और यानी स्माइल के साथ, यानी जब वो आपके घर विज़िट करें तो यू विल हैव टू गिव अ वार्म स्माइल व्हेन यू ग्रीट दैम. तो वो आपसे जो है वो बहुत ही खुश होंगे. ग्रीट मीन्स होता है, और ग्रीट ऑल्सो मीन्स टू वेलकम, टू से, यानी आप जब उन्हें वेलकम करें, उनको जब वो आपके घर विज़िट करें, आप उन्हें उनको वेलकम करेंगे.
तो आप उन्हें बहुत अच्छे वार्म वेलकम करेंगे और स्माइल के साथ करेंगे, ओके, ऐसे नहीं कि मुंह बना के करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टिप। एंड देन व्हाट इज़ द सेकंड टिप, वैल्यूएबल टिप, give them a helping hand especially when they are carrying their thing, और अगर if they have something in their hands, शॉपिंग बैग्स हैं, उनका कोई सामान है जो वो होल्ड कर रहे हैं, वो कैरी कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड, उनका हेल्पिंग हैंड बनिए, उनकी मदद कीजिए, उनसे चीज़ें लीजिए और ख़ुद होल्ड कीजिए, ना कि उनको पकड़े रहने दीजिए, ओके। नाउ the third tip is, the second last tip is, spend some time with them, listen to what they say, और इट इज़ बेटर टू स्पेंड, उनके साथ कुछ वक्त गुजारिए एंड लिसन, और सुनिए कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो एजड पीपल होते हैं, दे ऑलवेज गिव सम एडवाइसेस, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर वट एवर दे हैव फेस इन देयर लाइफ, जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया होता है, तो वो उसको एक शेयर करना चाहते हैं अपने अपने बच्चों में के साथ। सो इट इज़ बेटर टू स्पेंड सम टाइम, आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारिए और उनकी बातें सुनिए। देन यू हैव द लास्ट टिप गिवन बाय बिग ब्रदर, जो लास्ट टिप दिए वो क्या है, ओल्ड पीपल गेट ईजिली इरिटेटेड, इरिटेटेड मीन्स होता है एनॉयड, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी, तो वो जल्दी से जो है वो माइंड कर जाते हैं, बट बी काइंड एंड पोलाइट टू दैम, लेकिन आप उनको बड़ा समझते हुए उनके साथ हमेशा काइंड रहिए, रहमदिल रहिए और पोलाइट रहिए, यानी टू स्पीक इन अ सॉफ्ट वे, ट्रीट दैम इन अ सॉफ्ट एंड काइंड वे, उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव कीजिए। So these are the some tips given by big brother to Zen, who was feeling very unhappy, क्योंकि क्यों अनहैप्पी फील कर रहा था, बिकॉज उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसको क्या कहते थे कि ही इज़ एन इल मैनर्ड चाइल्ड, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेटर। डियर बिग ब्रदर, आई एम शॉर्ट इन हाइट, यानी who is writing a letter? Essen is writing a letter, and who is the student of class 9, and but what is his problem, कि उसकी जो height है वो क्या है, छोटी है, he is short. What is the problem of Essen? He is short heighted and he travel in a bus daily because he पब्लिक बस में सफ़र करते हैं। माई प्रॉब्लम इज़ दैट, नाउ ही इज़ टेलिंग द प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम दैट इज़ वॉज इट इज़ प्रॉब्लम, आई ऑलवेज पे माई फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, जो किराया होता है जो हम पे करते हैं जब हम बस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, वी हैव टू पे किराया, किराए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेयर कहते हैं। वाइल आई एम मोस्टली आस्क्ड टू गिव अप माई सीट फॉर अदर पीपल, यानी लोग मुझसे अक्सर जो है मुझसे कहा जाता है कि मैं गिव अप कर दूँ। गिव अप का मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ड, इट इज़ द मीनिंग ऑफ गिव अप इज़ टू लीव, कि मैं अपनी सीट को छोड़ दूँ अदर पीपल के लिए, यानी दूसरे लोगों के लिए। सिंस आई पे माई फेयर, मैं हालांकि मैं अपना फेयर जो है मैं पे करता हूँ, इट इज़ माई राइट, ये मेरा हक है, राइट मीन्स हक है, टू गेट अ प्रॉपर सीट, कि मुझे भी प्रॉपर सीट मिले। मोर ओवर, मज़ीद ये कि वेन एवर द कंडक्टर, जो बस कंडक्टर होता है, वो आस्क्स मी टू स्टैंड अप, कि और मुझसे वो बस कंडक्टर भी अक्सर कहता है कि मैं स्टैंड अप हो जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ। एंड और इस बात पे जो है, जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं हु आर ट्रैवलिंग विद मी, मेरे साथ जो सफ़र कर रहे होते हैं, दे मेक फ़न ऑफ़ मी। फ़न ऑफ़ मी का मतलब होता है, मेक फ़न ऑफ़ मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मेरा मजाक उड़ाते हैं। एंड दिस थिंग मेक मी एनॉयड, एनॉयड का मतलब ये मुझे इरिटेट कर देती है, मुझे गुस्सा दिला देती है, मैं बहुत क्रॉस हो जाता हूँ, आई फील क्रॉस, आई फील I feel cross, okay? Please tell me what to do, मैं क्या, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। And Essen, what is how he is feeling, कैसा फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। As I told you, Zen was feeling unhappy, but Essen here, he is feeling disturbed and he is the student of class grade 9. Now here the big brother who is telling the solution of his problem. Dear Essen, it is good that you are an honest boy. आप एक बहुत ईमानदार बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं। That you pay your fare, आप अपना किराया भी देते हैं। And I think you are very lucky to be asked to give up your seat for an adult, especially for an old or handicapped person और अ पर्सन कैरिंग समथिंग हैवी। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव और उसको ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, यानी एक अच्छा व्यू कहते हैं, उसको ख्याल दे रहे हैं कि आप बहुत लकी हैं। आप बहुत लकी मीन्स क्या होता है, खुशकिस्मत है, फॉर्चुनेट है कि आपसे कहा जाता है कि आप अपनी सीट को लीव कर दें किसी अडल्ट के लिए, किसी बड़े के लिए।
स्पेशली कौन हो वो बड़ा, या तो वो कोई ओल्ड होगा या हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होते हैं जो डिसेबल पीपल होते हैं, जो माजूर लोग होते हैं, उनको कहते हैं हैंडीकैप्ड। ओके और अ पर्सन, और किसी ऐसे पर्सन के लिए, या तो किसी अडल्ट के लिए जो ओल्ड हो या हैंडीकैप्ड हो, या किसी ऐसे शख्स के लिए जो कुछ हैवी सामान जो है वो क्या कर रहा हो, कैरी कर रहा हो, कैरिंग समथिंग हैवी, जो कोई जो है भारी सामान जो है वो पकड़ा हुआ हो। सो दिस गिव्स यू अ चांस टू सर्व अदर। तो इसका मतलब है कि आपके लिए एक चांस है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। चांस मीन्स होता है अपॉर्चुनिटी यानी मौका। टू सर्व, सर्व का मतलब होता है कि खिदमत करना, कि दूसरों के काम आना। ऑल्सो इट इज़ गुड मैनर्स टू ऑफ़र योर सीट टू दोज हु नीड इट मोर देन यू। और ये तो अच्छे अखलाक में से, अच्छे मैनर्स में से है कि आप अपनी सीट जो है वो दूसरों को ऑफ़र करें, उसको पेश करें उन ऐसे लोगों को, किन लोगों को, टू दोज हु नीड इट मोर देन यू, जिनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी जो आपसे ज़्यादा नीडी हैं, जो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ओके सेकेंडली, सेकेंड थिंग वो कह रहे हैं, डू नॉट स्टॉप डूइंग गुड डीड्स। क्योंकि हम सब लोग अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे काम सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, सो वी स्टॉप डूइंग गुड डीड। तो वो कह रहे हैं डोंट स्टॉप डूइंग गुड डीड। डीड्स मीन्स क्या होता है, एक्शंस, एक्ट्स, जो काम होते हैं, अमाल होते हैं, अच्छे काम जो है वो आप करना मत छोड़िए। बिकॉज इसलिए नहीं कि योर फ्रेंड्स मॉक यू। वॉक इज़ द मीनिंग ऑफ मॉक, द मीनिंग ऑफ मॉक एज आई टोल्ड यू, मेक फन, मॉक हैविंग द सेम मीनिंग, मजाक उड़ाना। इन फैक्ट द हकीकत, फील ऑनर्ड, आप ऑनर्ड फील कीजिए। आप जो है वो ऑनर्ड मीन्स होता है आप बीइंग रिस्पेक्टफुल, आप बहुत अपने आप को इज़्ज़त वाला समझिए कि आपको दैट गॉड हैज़ सेलेक्टेड यू, कि अल्लाह ने आपको सेलेक्ट किया है टू गिव कम्फर्ट टू अदर ह्यूमन बींग्स, कि आप दूसरों को आराम दें। कंफर्ट मीन्स आराम दें, किसको, दूसरे लोग को, दूसरे इंसानों को। सो ये अल्लाह ताला की तरफ से आप ब्लेस्ड बॉय हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये चांस दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यू आर सर्विंग अदर्स, एंड इट इज़ अ गुड मैनर टू ऑफ़र यू सीट टू दोज हु नीड मोर देन यू। और उन लोगों को सीट दीजिए जो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो इट इज़ अ गुड मैनर। तो ये कुछ 2 लेटर्स थे जो हमने आज पढ़े हैं। दिस इज़ I think so this is quite enough for today. Inshallah ta'ala we will 3 letters are left. Inshallah ta'ala we will read it tomorrow. And okay, what is your homework for today? You will have to read first 2 letters that I read it and explain you, and look up the meaning of new words जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए वर्ड्स, या इसके अलावा कोई और वर्ड्स जो आपको मुश्किल लगते हैं, आप उनके मीनिंग्स को देखें इन द डिक्शनरी। मेक योर हैबिट टू फाइंड द वर्ड्स, टू सर्च फॉर द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। इट इज़ अ गुड हैबिट। टीचर पे पूरा रिलाई मत कीजिए, और जो है खुद भी जो है वो थोड़ी सी इसकी ड्रिल कीजिए कि हाउ टू लुक अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी। आपको इसमें आपकी परफेक्शन आएगी, आपको मीनिंग सर्च करना आएगा रिलेटेड टू द टेक्स्ट, रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, आपको मीनिंग्स फाइंड आउट करने आएंगे। सो दिस इज़ क्वाइट इनफ फॉर टुडे। इंशाअल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।